ये वीडियो एक इस्राएली महिला का है, सुने क्या कह रही हैं वो। Enough is enough. I just watched a video of a little girl about the same exact age as my daughter splayed out on a dirty hospital floor while doctors tried to save her life but couldn't, and she took her last breaths. I watched her mother grieve over her body, trying to lift her little head and give her a kiss. If you are a parent and you do not see your children in every single one of those kids, I can't help you. And that is why I don't waste a single fucking moment arguing, debating, giving civil debate to the people who are supporting this. Wow. ये महिला कह रही है कि हमारा पैसा इस्राएल की सरकार जंगों में खर्च कर रही है, बहुत हो चुका और अब ये नहीं होना चाहिए। जंग की सीधी तस्वीरें ये वेस्ट बैंक से है, जेनिन इलाके से। यहाँ इसराइल के 3 सैनिक आज मारे गए और कई जख्मी हुए हैं। इस इलाके में 27 घंटे से जंग जारी है। ये वीडियो भी जेनिन इलाके से है, जहाँ IDF इस वक्त गोलाबारी कर रही है और फ़लस्तीन के लोग उनका बराबर बाजुओं से मुकाबला कर रहे हैं। अभी जो आप वीडियो देखेंगे, ये वीडियो इसराइल के हेलीकॉप्टर का है, जो इसराइल के ज़ख्मी सैनिकों को लेकर के तेल अवीव पहुंचता है। और इस तरह के दर्जनों हेलीकॉप्टर इस वक्त वेस्ट बैंक और गाज़ा में आपको नज़र आ जाएंगे, जो इसराइल के सैनिकों को, ज़ख्मी सैनिकों को लेकर के अस्पताल पहुंचते हैं। देखें वीडियो। जंग के मैदान में IDF के जो भी सोल्जर्स ज़ख्मी हो रहे हैं, उनको एयरलिफ्ट किया जाता है, फिर तेल अवीव पहुँचाया जाता है इलाज के लिए। लाश को हाथों पर उठाए हुए एक फ़लस्तीनी पानी में, इस वक्त गाज़ा के इलाके में, फ़लस्तीन में भारी बारिश हुई है 2 दिनों से, तो कई इलाकों में पानी इस वक्त भर चुका है। देखें। लाश को लिए हुए ये लोग बर्फ़ और पानी में। इस वक्त ठंड बहुत है गाज़ा के इलाके में, कई इलाकों में बर्फ़ भी आने लगी है। यहाँ ये वीडियो भी गाज़ा का है, बारिश के बाद जो हालात हैं वो देखें आप। घोड़ा गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो विक्ट्री का सिंबल यहाँ पर दिखा रहे हैं, और बाकी सड़कों पर आप भरा हुआ पानी देख सकते हैं। ये तस्वीरें गाज़ा के एक रेफ्यूजी कैंप की हैं। यहाँ बारिश के बाद पानी भर गया है और बच्चे देखें उसी में खेल रहे हैं। खुशियों के लिए, खुश रहने के लिए कोई ना कोई मौका ऊपर वाला फराहम कर देता है। तो इन बच्चों को जंग के हालात में, जो इस वक्त बहुत ख़तरनाक जंग यहाँ जारी है, उस दौरान बड़ी किल्लत थी पानी की, तो कुदरत ने पानी आसमान से ऐसा बरसाया कि गलियों में भी पानी जमा हो गया, और उस पानी में बच्चे इस वक्त आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाज़ा के अंदर इसराइल के हमलों से, धमाकों से, बमबारी से जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में ये आप देखें वीडियो। To understand the scale of Israel's destruction in Gaza. In just 1 month, Israel dropped the equivalent of 2 nuclear bombs on Gaza. And this article was from November 1st, so at this point it's probably almost double that. And many of these bombs are so big that you could be standing 3 football fields away and you still might die. And not to mention that these are being dropped in one of the most densely populated places on earth, made even more dense by the mass displacement of 1.8 million Palestinians. Israel is dropping bombs so fast that an EU diplomat has said that if it wasn't for the US sending them more weapons, they would have to end the war within days, which
which Joe Biden is more than happy to do, even bypassing Congress to do so, despite the fact that the Pentagon failed their 6th audit in a row and can't account for trillions of dollars worth of assets. At this point, over 18,000 Palestinian civilians have been killed, and a study has found that the proportion of civilian deaths in this conflict is greater than any other war in the 20th century, and that's including both world wars. Over 60% of buildings in Gaza have been damaged or destroyed, and that's a level of destruction greater than what Germany experienced during World War II. We are seeing World War levels of destruction in just the span of 2 months. This is a graph of US military aid to Israel. This is the imperialist war machine at work in real time, funded by our tax dollars. This is why we're all protesting, why we're all striking. Not only for a ceasefire now, but ultimately for a free Palestine. Because this machine doesn't stop unless we make it stop. वीडियो मैदानी जंग से है, देखिए बिल्कुल क्लोजअप में देखें आप, ये कितनी घमासान की लड़ाई चल रही है सब। इसको हमने म्यूट किया हुआ है आवाज़ की वजह से। ये देखें आप, एक सोल्जर यहाँ मरा हुआ है इसराइल का। जंग का आज 68वां दिन है। इन 68 दिनों में अब तक जो तबाही हुई है वो गाज़ा के आम लोगों की तबाही हुई है, उन्हीं की जानें जा रही हैं, शहीद हो रहे हैं वो, और इसराइल अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखें यहाँ तबाही का एक वीडियो। सब कुछ तबाह हो चुका है इधर। वीडियो ये जेरूसलम की एक रब्बी का है, यहूदी मज़हब के धर्मगुरु हैं। देखें वो इस्लाम और यहूदी मज़हब के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। Slaughter in Gaza has nothing to do with the conflict between religions, between Judaism and Islam. We have been living together as Jews and Muslims for literally hundreds of years, thousands of years. We've been living together with Arab people. You can see how we live together. It's only an introduction of a political movement called Zionism, and they're using the name of Judaism to declare war on the people of Palestine, to declare and vilify the people of Palestine that they're anti-Semites, anti-Jews. That's totally repugnant and false. We cannot be silent. We're Jews. Because we're Jews, we have to stand up and say, this is not true. It's not in our name. We totally object to this. We cry and hurt with the people of Gaza and of Palestine. But this is not a religious state. It's not a Jewish state. They're using the name Israel. They're masquerading in the Star of David in the name Israel. This is a criminal. ये वीडियो हमें TRT वर्ल्ड से हासिल हुआ है, जो तुर्की का अपना सरकारी मीडिया है। Entity, the mass slaughter. यहाँ पर यहूदी रब्बी कह रहे हैं, यहूदी मज़हब के धर्मगुरु, इस्लाम और यहूदी मज़हब के लोग बहुत लिबरल हैं, आपस में एक साथ रहते हैं, और जो भी कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है ये आतंकवाद है। और ज़ायनिस्ट जो है, जो कि यहूदी धर्म से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इस वीडियो में रोते बिलखते हुए आप एक माँ को देखेंगे। इस माँ के 3 बच्चे इस जंग में, फ़लस्तीन की जंग में अभी तक शहीद हो चुके हैं इसराइल के आतंकवादी सैनिकों के हाथों। वीडियो देखें। इस वीडियो को हमने म्यूट किया हुआ है। कॉपीराइट और कम्युनिटी वॉलेशन के क्लेम का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए बहुत सारे वीडियोज म्यूट कर दिए जाते हैं। अल मदाइन मीडिया से, अल मदाइन जो अरब का एक मीडिया है, उससे ये वीडियो हासिल है। आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जिसके 3 बच्चे जंग में शहीद हो गए हों बेकसूर, यहाँ पर इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। वीडियो देखिए। Everybody
इसमें यहूदी और मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी लोग शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में। वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट इसराइल एंड अगेंस्ट नेतन्याहू। जंग के दौरान जान बचाने के लिए एक शख्स देखें आप किस तरह से अपनी जान बचाता है। सर्दी है, बर्फ़ पड़ रही है, बारिश हो रही है और ये गाज़ा की तस्वीरें हैं। सामने एक खच्चर बंधा हुआ है, खच्चर के ऊपर पॉलीथीन लगाई हुई है ताकि वो भीगने से बच जाए। दूसरी तरफ सड़क पे आप देखेंगे लोग गुजर रहे हैं इधर से उधर। वीडियो में जो आप एक होल देख रहे हैं इसको इसराइल की सेना हमास की टनल बता करके प्रोपोगेट कर रही है, जबकि ये सीवेज का होल है। फिर से एक बार उसको देखें। वाटर सप्लाई का होल है ये, और इसराइल का मीडिया, वेस्ट का मीडिया ऐसे किसी मकाम पर पहुंचने के बाद वो बताते हैं कि ये हमास की सुरंग है। अमेरिका के अंदर बाइकॉट ज़ारा का ट्रेंड चला हुआ है और लोग अपने कपड़े जो ज़ारा के कपड़े यहाँ ला करके फेंक रहे हैं। बता दें कि ज़ारा ने एक बहुत ही इंसल्टिंग एडवर्टीजमेंट किया था गाज़ा वॉर को लेकर के, और उसके बाद फिर इनके ख़िलाफ़ ये ट्रेंड चला हुआ है। वीडियो देखें आप जो इन्होंने एड फिल्म बनाई थी। इसमें गाज़ा में शहीद होने वाले मासूम बच्चों को लेकर के इन्होंने बहुत ही भद्दे तरीके से उसका प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ज़ारा का विरोध हो रहा है। ये देखें आप, ये ज़ारा कंपनी है जो कपड़े बनाती है। अमेरिका के अंदर अमेरिकी लोगों ने ज़ारा कंपनी का बाइकआउट किया और फिर कपड़ों को ला करके वो फेंक रहे हैं एक जगह मकाम पर। एक बच्चा अपनी बात को गाज़ा की जंग के मुतालिक अपनी बात रखता है। आप इस बच्चे की बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। बता दें आज जंग को 68 दिन हो चुके हैं और आज इसराइल ने ये माना है कि आज भी उसके 10 लोग अब तक जंग में मारे जा चुके हैं और तकरीबन 33 लोग ज़ख्मी हुए हैं। 33 सैनिक ज़ख्मी हुए हैं। 10 सैनिक इसराइल के आज मारे गए। 10 के मारे जाने की पुष्टि इसराइल ने कर दी है। तो 68वें दिन भी आज नुकसान हुआ है उसको और अभी जंग चल रही है। दूसरे ये भी बता दें आपको कि दोबारा से सीज फायर को लेकर के या जंग बंदी को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है और ये बातचीत अब की बार इसराइल ने खुद शुरू करवाई है अमेरिका से कह करके। अमेरिका ने पैगाम भेजा, इसराइल ने पैगाम भेजा अमेरिका के पास, क्योंकि पूरा एक चैनल है। तो फिर अमेरिका ने ये पैगाम कतर को दिया, उसके बाद से फिर बातचीत शुरू हुई है। हमास को पैगाम भेजा गया है, तो हमास की तरफ से पूरी डिटेल में बात की जा रही है इस बार, और उन्होंने कहा जितने भी बंदी हमारे इसराइल की जेलों में बंद हैं उन सभी की रिहाई हो। अब की से हमास बहुत सख्त हो चुका है सीज फायर को लेकर के, क्योंकि जो पहले शुरू में हुआ था 7 दिन के लिए, उसके बाद एक उम्मीद ये थी कि अब यहाँ से जंग थमेगी और चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन इसराइल ने एक तरफा युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जंग शुरू कर दी और जंग शुरू करने के बाद फिर उसने
खान यूनुस और रफ़ा के इलाके में जो हैवी शेलिंग बमबारी की है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, याहिया सिनवर को ये लोग पकड़ना चाहते थे क्योंकि टॉप मोस्ट वांटेड लोगों में वो शामिल हैं। तो याहिया सिनवर के लिए इन्होंने चारों तरफ जाल फैलाया हुआ था और वो समझ रहे थे कि शायद खान यूनुस में याहिया सिनवर मौजूद है। याहिया सिनवर गाज़ा के ही इलाके में है, या तो वो गाज़ा में होंगे या गाज़ा सिटी में या खान यूनुस या रफ़ा में, लेकिन है इसी पट्टी पर। वो मैदान से कभी नहीं गए पूरी जंग के दौरान। अच्छा, एक ख़बर जेरूसलम पोस्ट ने छापी थी 3 दिन पहले कि याहिया सिनवर IDF यानी इसराइली सेना की इसराइली सैनिकों की मौजूदगी में गाड़ी में बैठ करके और एक तरफ से दूसरी तरफ यानी खान यूनुस के इलाके से वो गाज़ा में पहुंच गए। अब इसराइल की सेना उनको नहीं पहचान सकी। अब ये टोटल फेल्योर इसराइल के बार बार सामने आ रहे हैं। इसराइल की इंटेलिजेंस, इसराइल की बाकी एजेंसियां और सब पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं। तो इनको उम्मीद ये थी कि अब जब हमने गाज़ा में तबाही मचा दी है तो वो खान यूनुस में होंगे और खान यूनुस में उनका जो घर था उसको इसराइल की सेना ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। फिर ये बताया गया कि हमने मकान को घेर लिया है। जब आपने तहस नहस कर दिया तो घेर का क्या लिया? और वहाँ फिर इन्होंने तलाशी अभियान वगैरह चलाए, बमबारी की, टैंक्स वगैरह भेजे, तो वहाँ कुछ भी ना टनल मिला ना ही और कोई चीज़ है। तो अब ये हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, मायूस हैं। इसराइल को के पास कुछ भी अभी तक हासिल नहीं हुआ है 68वें दिन तक। अब ये जंग आगे बहुत लंबा वक्त तक जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। उधर हथियारों की कमी हो गई है, तो हथियारों की अर्जेंट इन्होंने डिमांड की है अमेरिका से, पूरी फहरिस्त भेजिए कि ये हथियार हमको दीजिए, अगर हथियार हमको नहीं मिले तो हम जंग हार जाएंगे। उधर हुतीज़ ने कमाल कर दिया पूरी जंग के दौरान। हुतीज़ ने एक मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया और अमेरिका को इसमें धमकी सीधी सीधी है, क्योंकि इसराइल ने कहा था अमेरिका से कि आप इनको न्यूट्रलाइज कराइए, अगर ये नहीं होते तो हम फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, हम इनके ख़िलाफ़ जंग छेड़ देंगे। तो हुतीज़ ने बोला कि ठीक है, मैदान में आइए, हम तैयार बैठे हुए हैं, यू आर वेलकम। अब यहाँ पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही इसराइल की कि किसी तरह से, चूँकि सऊदी अरब दरमियान में है, सऊदी अरब इस जंग में एक पार्ट है और सऊदी अरब का रोल इस बार अच्छा है, पहले से नहीं होता था। हमास से भी वो बहुत ज़्यादा उनके विरोधी थे, हमास को नहीं चाहते थे किसी भी तरह से। लेकिन इस बार की जंग में चूँकि कैजुअल्टीज हुई हैं आम लोगों की और वर्ल्ड वाइड जो इसकी इसराइल की धज्जियाँ उड़ी हैं, इसराइल का जो विरोध हुआ है, अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है अरब के देशों में कि वो अगेंस्ट फ़लस्तीन या अगेंस्ट हमास जा सकें। तो यमन के ख़िलाफ़ तो कोई कुछ करने का कोई गुंजाइश फ़िलहाल तो नज़र नहीं आती। अगर इसराइल कोई हमाकत इस तरह की करता है कि किसी तरह का कोई रिटेलिएट करे तो फिर हुतीज़ की तरफ से बाकायदा एक जंग शुरू कर दी जाएगी और वो बड़ी जंग होगी। फिर लेबनान की तरफ से भी बड़े हमले होंगे, क्योंकि अभी लेबनान की तरफ से जो हमले होते हैं वो बहुत देखभाल करके और एक स्ट्रेटजी के हिसाब से मौका देख करके, कभी हल्के कभी थोड़ा सा ज़्यादा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अभी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इख्तियार नहीं की है। हाँ, वो डैमेज बहुत कर रहे हैं और जैसे ही हमास के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है तो फिर लेबनान अपनी तरफ से हमले थोड़ा तेज़ कर देता है ताकि उनका फोकस उधर से शिफ्ट हो इधर, और इसराइल की सेना को इसमें भागदौड़ करनी पड़ती है, इधर से उधर भागना दौड़ना पड़ता है। अभी तक की कुछ यही अपडेट्स थी जो आपके सामने पेश की हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।